Hello everyone. Continue with the same chapter number 8, quadrilateral. In the previous module, we have done the definition of quadrilateral, angle sum property of quadrilateral, types of quadrilateral, and theorem number 8.1. Now, some more theorems are here, but the proving of these theorems are not in your syllabus. You have to learn these theorems only to solve the sums. Now theorem number 8.2. In a parallelogram opposite sides are equal. Now you know very well कि in parallelogram the opposite sides are equal, but this we have to prove कि how the opposite sides are equal. So like in theorem number 1 we have made the triangles congruent by ASA rule. Till that you have to solve, and after that the sides, opposite sides, means AD equals to BC and AB equals to CD. ये these will come by CPCT. तो यहाँ पे जो 8.2 का सॉल्विंग है वो 8.1 थ्योरम जो है जो कॉन्ग्रेंट किए थे हमने ट्राइंगल बाय ASA रूल वहाँ तक सेम है, एंड देन the sides will be equal by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. I am just giving you the hint how you will prove this, but no need to prove, just you have to learn these properties only, learn these theorems to solve the sums. Theorem number 8.3. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है. ठीक है. नाउ आई एम गिविंग यू द हिंट हाउ वी विल सॉल्व दिस, but you have to learn only this. First we will make a quadrilateral ABCD. This is a quadrilateral. ठीक है. अब इस quadrilateral में each pair of opposite side are equal, means AB equals to CD and BC equals to AD. Then it is a parallelogram. अब इसको क्या प्रूव करना है, हमको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द कंस्ट्रक्शन, द सेम थिंग, द डायगोनल AC we have to draw, and by SSS rule these two triangles will be congruent. SSS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, एंड हियर वी विल पुट द एंगल नंबर्स, एंगल 1 2, ठीक है, एंड हियर एंगल 3 एंड एंगल 4. तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो. ये तो हमारा CPCT से आ जाएगा जब ये दोनों ट्राइंगल्स हम SSS से कॉन्ग्रेंट करेंगे, बट दीज आर alternate interior angles also. तो जब ये the pair of alternate interior angles are equal, then the lines will be parallel, means AB parallel to DC and this AD parallel to BC. तो जब both the pair of opposite sides are parallel तो it is a parallelogram. तो ऐसे इसको सॉल्व करना है. ठीक है. नाउ थ्योरम नंबर 8.4. इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब नाउ यू नो वेरी वेल कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बस उसको प्रूव करके देखना होता है कि कौन सी उससे किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपको उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल्स को और सब कुछ. तो यू हैव टू लर्न दीज थ्योरम्स ओनली, एंड द सॉल्विंग proving of these theorems are in your book also, so you can read the proving from there also. Now 8.5 theorem number. If in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. अगर किसी quadrilateral में opposite angles equal हैं तो वो एक parallelogram होता है. The diagonals of a parallelogram bisect each other. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम. अगर डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है. जस्ट इसका रिवर्स है ये. 8.6 का कन्वर्स है 8.7. 8.8. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel. एक quadrilateral parallelogram कब होता है, जब pair of opposite sides are equal and parallel होती हैं. तो these all property we have already learned in the definitions also.
तो same are in the form of theorems. So you have to learn these theorems. Now exercise 8.1, question number 1. The angles of quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. So the ratio is given of the sides. So first you will take, let the angle A be 3x, angle B be 5x, angle C be 9x, and angle D be 13x. Then add them up. 3x plus 5x plus 9x plus 13x equals to 360 degree. ASP of quadrilateral. Now you will get the value of x is 12 degree. Then angle A is 3x, so 3 into 12. Angle B is 5x, so 5 into 12. Angle C 9 into 12. Angle D 13 into 12. So you will get the angles by this method. Now question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो it is given to us कि diagonal of a parallelogram. First of all तो we have a parallelogram और उस parallelogram के क्या equal हैं, diagonals equal given है. Then show that it is a rectangle. आपको क्या प्रूव करना है कि ये एक rectangle है. ये जो parallelogram है ये एक rectangle है. अब parallelogram rectangle कब होता है, rectangle में भी sides क्या होती है, opposite sides are equal होती हैं. और ये parallelogram है तो इसकी opposite sides already equal हैं. अब रेक्टेंगल के एंगल्स कैसे होते हैं, रेक्टेंगल के एंगल्स फॉर्म करते हैं 90 डिग्री, जबकि पैरेललोग्राम के एंगल्स ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री फॉर्म करें. तो ऑल द एंगल्स अगर हमने 90 डिग्री यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये 90, ये 90, दिस 90 एंड दिस 90, अगर ये चारों एंगल्स हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिए तो इट इज़ अ रेक्टेंगल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर इक्वल. का मीनिंग क्या हो गया, AC is equals to BD. AC equals to BD मीन्स हमारे पास में क्या क्या है यहाँ पे, AB equals to DC क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, एंड AD equals to BC, AD equals to BC, और ये डायगोनल्स भी इक्वल हैं. ठीक है, तो 3 थिंग्स वी हैव. नाउ टू प्रूव ABCD is a rectangle. Now for proving this, first of all you will take 2 triangles, and which triangle you have to take, this one DA and B, जिसमें आपको ये एंगल A मिल रहा है पूरा. ठीक है, जहाँ पे ये पूरा एंगल A मिल रहा है. अब पूरा एंगल B किस वाले में मिलेगा, पूरा एंगल B हमको मिलेगा इस ट्राइंगल में CB एंड A. ये ट्राइंगल, इसमें आपको ये पूरा एंगल B मिलेगा. ठीक है, तो इन ट्राइंगल DAB एंड CBA. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए DAB और CBA में क्या क्या थिंग्स इक्वल हैं, DB इक्वल्स टू CA, ये आपको गिवन है. ये जो आपके डायगोनल्स इक्वल गिवन थे क्वेश्चन में, तो DB इक्वल्स टू CA. सेकेंड थिंग AB इक्वल्स टू AB आपका कॉमन हो गया. और थर्ड थिंग AD equals to BC, this AD equals to this BC, opposite side of parallelogram are equal. तो ये 3 थिंग्स हो गए. तो SSS से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए. तो जब SSS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो दिस एंगल A एंड दिस एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B आपका बाय CPCT हो गया. तो इस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B का फुल नेम यहाँ पे गिवन है, एंगल DAB एंड CBA, एंड यू कैन राइट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ऑल्सो. तो ये आपका बाय CPCT हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब उसके बाद में दिस साइड AD एंड दिस साइड BC, ये दोनों साइड्स क्या हैं आपकी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड्स क्या हैं आपकी, पैरेलल हैं. ठीक है, एंड इक्वल भी हैं, तो पैरेलल है. एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, AB इज द ट्रांसवर्सल. नाउ व्हेन यू विल टर्न द कॉपी, देन यू विल गेट कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, एंड देन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री. CIA मीन्स को इंटीरियर एंगल्स. और यू कैन टेक इट बाय एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो, कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. या तो ये प्रॉपर्टी ले लो या फिर ये को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी, सेम थिंग होगी. तो अब
अभी हमने ऊपर क्या प्रूव किया था सीपीसीटी से, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ एंगल बी को भी क्या लिख दिया, एंगल ए लिख दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल ए 180 डिग्री, तो 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल ए इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए हमारा कितना आया था, 90 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही एंगल बी, जब एंगल ए 90 डिग्री आया तो एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री, बिकॉज ए इक्वल्स टू बी। तो बी और बी इक्वल्स टू डी, बी और डी क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। ये बी इक्वल्स टू डी हो गया आपका। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड यू कैन राइट इन द ब्रैकेट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो in parallelogram ABCD all the angles are right angles, so ABCD is a rectangle. So this was the question number 2. How to solve this, again I am explaining. Just you have to take these two triangles. This one is the first triangle जिसमें एंगल A पूरा मिलता है, ठीक है, and this one is the second triangle जिसमें आपको एंगल B पूरा मिलता है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप जब कॉन्ग्रेंट करोगे एसएसएस से, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट एंगल ए प्लस एंगल बी आपके कौन से एंगल्स हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आपके पास 90 आ जाएगी। और ए एंड सी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो दोनों 90 हो गए। एंड बी भी 90 है, तो डी भी आपका 90 हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Show that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. आपको क्या शो करना है, diagonals of a, show that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other कि at right angle, अगर किसी quadrilateral में diagonal bisect करते हैं एक दूसरे को right angle में, then it is a rhombus. तो वो जो quadrilateral बना हुआ है वो एक rhombus है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की साइड्स की प्रॉपर्टी होती है ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो सारी साइड्स अगर हमने इक्वल प्रूव कर दी तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ रोम्बस एंड उसके 2 डायगोनल्स बना रहे हैं, और ये डायगोनल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, और सेंटर पॉइंट ओ लेना है। ठीक है, now what is given to you, first of all you will write the given, a quadrilateral in which diagonal AC and BD bisect each other at right angle. ठीक है, अब bisect each other का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, ये this one AO equals to OC and BO equals to OD, and these all angles, angle AOD equals to angle BOA equals to angle BOC equals to angle COD equals to 90 degree. So this is given to you. First thing AO equals to OC given, second thing BO equals to OD given, क्योंकि diagonal bisect each other कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आ जाएगी, और ये चारों एंगल this one, this one, this one and this one is 90 degree. This is given to you. टू प्रूव ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, आपको प्रूव क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है दैट इज़ अ रोम्बस। तो फॉर दिस आपको क्या करनी है, साइड्स इक्वल करनी है। अब साइड्स इक्वल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक दीज 2 ट्राइंगल्स। जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करोगे तो सी पी सी टी से ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। अब लेट्स लुक कि कैसे आप इन दोनों ट्राइंगल्स को बाय विच कॉन्ग्रेंसी रूल यू कैन कॉन्ग्रेंट दीज ट्राइंगल। So first of all, which are the equal things? First thing is AO equals to OC. It is given to you. AO equals to OC. Second thing, this BO equals to BO common. Okay. And third thing, this angle and this angle. Angle AOB equals to angle BOC equals to 90 degree. All 3 things, first thing is given, second thing is common and third thing is given in the
क्वेश्चन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। बाय विच रूल, बाय SAS रूल। तो बाय SAS these two triangles are congruent by SAS। तो जब ये ट्राइंगल्स आपके SAS से कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, AB इक्वल्स टू BC बाय CPCT। तो ये टू साइड्स तो आपकी हो गई इक्वल। अब ये अनादर, ये वाली और दिस वन, ऑल साइड्स इक्वल करनी है आपको। तो अब इन दोनों, अब कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे, अब हम लेंगे दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, एंड बाय सेम SAS रूल यू हैव टू कॉन्ग्रेंट दिस ट्राइंगल। बट अब उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट कि ट्राइंगल दिस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल दिस बाय SAS रूल, एंड BC इक्वल्स टू दिस साइड, BC इक्वल्स टू CD बाय CPCT। डायरेक्टली यू कैन राइट। एंड थर्ड टाइम यू विल टेक दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, मतलब पास पास वाले ट्राइंगल्स लेने हैं आपको। ये भी आपका क्या हो जाएगा, SAS से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो CD इक्वल्स टू DA by CPCT। तो here I have given the solution to you। तो in this let's look, triangle AOB congruent to triangle BOC by SAS rule and AB equals to BC by CPCT। this is your equation number 1। then after that no need to solve, only first time आपको solve करना है। similarly triangle BOC congruent to triangle COD by SAS rule and BC equals to CD by CPCT। and third time triangle COD congruent to triangle AOD by SAS rule and CD equals to AD by CPCT। this is your equation number 3। तो from equation 1, 2 and 3 when you will look in equation 1, 2 and 3, equation 1 में देखो AB आपका BC के इक्वल है, BC आपका CD के इक्वल है और CD आपका DA के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। तो all the sides of this quadrilateral are equal, so it is a rhombus। Again I am explaining you, first of all you will draw the figure, write the given to prove and then proving। अब प्रूफ करने के लिए इसको क्या करना है, you will take these two triangles first and by SAS rule you will make these triangles congruent। तो जब ये दोनों ट्राइंगल congruent हो जाएंगे तो this side equals to this side हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड टाइम which triangles you will take, this triangle and this triangle, these purple one triangles, ये भी आपका SAS से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंड CPCT से आपका दिस BC इक्वल्स टू CD हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड टाइम विच ट्राइंगल्स यू विल टेक, दिस वन COD एंड DOA, ग्रीन वाले जो ट्राइंगल्स लेने हैं ये वाले लेने हैं। तो ये भी आपके SAS से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देन CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा बाय CPCT। तो 3 इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी। जब वो 3 इक्वेशंस बनेंगी तो from equation 1, 2 and 3 AB equals to BC equals to CD equals to DA, सारी sides equal होंगी, means this quadrilateral is a rhombus। So this is all for today। So you have to write all these theorems in your notebook, theorem number 8.2 to theorem number 8.8, just write it down only, no need to prove it, no need to solve it, just learn it, write and learn। And then after that exercise 8.1 question number 1, 2 and 3 you have to complete in your copy। Thank you।